इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको करवा दूंगा साथ में। तो सर गुड मीडियम मॉर्निंग कार्बन ऑल। स्टील जो होता है सर। Okay, good morning all. So today we will discuss in continuation to our previous lecture that was about various materials. So in various materials we have discussed about the classification of metals and alloys. So we have two types of metal and alloys, ferrous and non-ferrous. So in this chapter we are concerned about the ferrous materials, so that's why we have done the classification for the ferrous materials, right? So after that we have discussed about from the basic iron, from the pig iron, and the process of it, how we have manufactured from the earth crust, right? Then there are different type of processings are there with the help of furnaces. So according to process we have a different types of materials that we induced, like a cast iron, wrought iron, steels. After that we have discussed about in detail about the pig iron, wrought iron, gray cast iron, malleable cast iron. Then we are talking about the steels. So while we talk about steel, it is an alloy of iron and the carbon. So with the variation of composition of elements in the steel, so we have different types like a plain carbon steel. It is also known as a low carbon steel or mild steel. Then again we have varied the carbon composition. So we have a dead mild steel, right? So that here it was a homework. So you have to study about the medium carbon steel and the high carbon steel. So in case of, I will give some brief introduction about these two, medium carbon steel as well as the for high carbon steel. So in case of medium carbon steels, if we talk about, the medium carbon steel. So in this case, it contains carbon content from 0.30 to 0.70. 60 सर। So steel that are containing 0.35 to 0.45 carbon that have a tensile strength approximately of 750 Newton per mm square. So these type of steels are mostly used for making of connecting rods, wires, spring clips, gear shafts, key stocks. So these type of things are made with the help of, if we have carbon percent between 0.35 to 4.5, right? So now discuss anyone about the high carbon steel. Yes, in case of high carbon steel, so like high carbon. So what will the carbon percentage? It will be from 0.7 to 1.5%, right? So if we have a carbon percent between 0.7 to 1.5, so it is comes under the high carbon steel. So they are mostly used for making of cold chisels, wrenches, jaw vices, pneumatic drill bits. जो आपकी ड्रिल की बिट्स होती हैं, आप यूज करते हो ना, pneumatic drill bits that are made by the high carbon steels. Wheels for railway services, जो wheels होते हैं, wheels of railway, that are also made of from high carbon steel. I will not go in too much detail about all these, तो आप इसको स्टडी कर लेना. Then today we'll talk about the alloy steels. These are most prominent types of steels that are today used, alloy steels. So if you talk about the alloy steel, so how we will define it? So
वो स्टील को हम कब अलॉय स्टील कंसिडर करते हैं? सो दैट इज कंसिडर व्हेन मैक्सिमम ऑफ द रेंज गिवन फॉर कंटेंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट एक्सीडेड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, हम उसको अलॉय स्टील कब बोलेंगे? उसको कब बोलेंगे? जब उसके अंदर जो मैक्सिमम रेंज है हमारे अलॉइंग एलिमेंट्स की, वो उसको एक्सीड करते हैं। अगर हम उसको एक्सीड करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे वी हैव अ मैग्नीज, इन मैग्नीज हमारे पास जो है 1.65 से एक्सीड करेगा, सिलिकॉन 0.6 डिग्री परसेंट से करेगा, कॉपर 0.60 से एक्सीड करेगा। और जब हम इसको एक डेफिनेट रेंज के अंदर, जो डेफिनेट मैक्सिमम क्वालिटी है उसकी, उसको स्पेसिफाई करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, और कौन से अलॉय स्टील्स हैं जो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं? लाइक एल्यूमिनियम, क्रोमियम। ठीक है, तो कितना कर सकते हैं आप? बोरॉन आपको कितने? 0.399%। ओके, और कौन से हमारे पास? दीज आर कैन आल्सो एडेड, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। किसके लिए? टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड अलाइंग इफेक्ट। एनी डिजायर्ड अलाइंग इफेक्ट मतलब जैसा हम उसके अंदर मटेरियल के अंदर, स्टील के अंदर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वैसा हम उसके अंदर कर सकते हैं। राइट, सो अलाइंग, इसके नाम से क्लियर है, अलाय स्टील, दैट मींस वी आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा, अनदर मटेरियल इन द स्टील एज पर अवर डिजायर्ड अलाइंग इफेक्ट। जैसा हमें इफेक्ट उसके अंदर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सो लाइक अभी आपको कंपोजिशन बता देता हूँ, अलॉय स्टील के अंदर हम क्या क्या ऐड करते हैं। एक इसकी परसेंटेज होती है, कंपोजिशन ऑफ टिपिकल अलॉय स्टील। कंपोजिशन ऑफ टिपिकल अलॉय स्टील, carbon content 0.2 to 0.4%, right? Silicon will be in the range of 0.3 to 0.6%, and chromium will be in the percentage of 0.4 to 0.6%, and iron will be the balance one। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। मैग्नीज will be in the range of 0.5 to 1%, nickel in the case of 0.4 to 0.7%, and molybdenum it will be 0.15 to 0.3%. That is a typical composition of an alloy steel। हम अब इसको एज पर आवर डिजायर रिक्वायरमेंट्स हम इसको वेरी कर सकते हैं। हमें सिलिकॉन को वेरी करना है उसको वेरी कर सकते हैं, जिसको भी हमें करना है उसको वेरी कर सकते हैं। सो अलाइंग, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज अलाइंग एलिमेंट्स? जो हम ये सब क्या है? अलाइंग एलिमेंट्स हमारे पास। अब इनका रोल क्या है जब इनको वेरी करेंगे? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिंग दीज अलाइंग एलिमेंट्स? अगर हम कार्बन को वेरी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो इसको वेरी कर दिया तो क्या होगा? सिलिकॉन को वेरी कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, सो अलाइंग एलिमेंट्स अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। जो अलाइंग एलिमेंट्स हैं दिस विल अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ओके, तो स्टील क्या है? स्टील इज आल्सो एन अलॉय। किसका अलॉय है स्टील? दिस इज अलॉय ऑफ आयरन एंड आयरन प्लस कार्बन। ओके, एंड पुट इट इनटू a slightly different class from the ordinary carbon steel। अभी हमारे पास ऑर्डिनरी कार्बन स्टील है, उसके अंदर हम एक किसी भी कंटेंट को हम चेंज कर रहे हैं तो उससे इसकी प्रॉपर्टी अल्टर हो जाएंगी, और क्या हो जाएगी? वो आपकी ऑर्डिनरी स्टील है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये स्टील है, उससे वो अलग बिहेव करेगी, उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। राइट, यही काम है अलॉइंग एलिमेंट्स का। ओके, सो now what are the advantages and disadvantages of alloy steel? अभी हम alloy steel की बात की,
alloy steel है क्या, कैसे बनता है, what is the purpose of it. Now we'll discuss little bit about the advantages and disadvantage. ओके, तो उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे. तो कौन कौन से एडवांटेज क्या अटेन कर सकते हैं अगर हमें हार्डनेबिलिटी ज़्यादा चाहिए. वी रिक्वायर्ड अ ग्रेटर हार्डनेबिलिटी, कैन अचीव, यस वी कैन अचीव. हम ऐसा अलॉय एलिमेंट ऐड करेंगे जिससे उसकी हार्डनेबिलिटी इंक्रीज हो जाए. बट ऑन द सेम हैंड अगर हम अलॉय एलिमेंट की अलॉय उसके अंदर ऐड करें तो व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज, दैट इज द cost. Okay, cost will be the disadvantage. So what are the advantages or disadvantages we are discussing here. तो greater hardenability, अगर हम हार्डनेबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे तो पैरेलल में कॉस्ट भी डेफिनेटली उसकी इफेक्ट करेगी. लेस डिस्टॉर्शंस एंड क्रैकिंग्स, सो विद द हेल्प ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स, जो हमारी पिलियन कार्बन है, हमारे पास कार्बन स्टील है, उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन या क्रैकिंग हो रही है हम उसको भी कम कर सकते हैं. कौन सा अलाइंग एलिमेंट वो कम करेगा, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दैट इन द अपकमिंग टॉपिक्स. ओके, तो इन दैट केस साथ में इसकी जो ग्रेटर स्ट्रेस रिलीविंग एट गिवन हार्डनेस, जो स्ट्रेस रिलीविंग कर सकते हैं, ग्रेन ग्रोथ को रोक सकते हैं हम, हायर इलास्टिक रेशियो बढ़ा सकते हैं, उसकी इंडोरेंस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. तो डिसएडवांटेज क्या होंगी, हमें हैंडलिंग के लिए उसकी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी. टेंडेंसी टुवर्ड ऑब्स्टेनेटिक रिटेंशन, वो ऑब्स्टेनेटिक में भी रिटेन हो सकता है. टेम्पर ब्रिटलनेस इन अ सर्टन ग्रेड्स. ओके, तो बहुत सी हैं ऐसे और भी. इसकी ग्रेटर हाई टेम्परेचर, इसके हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं हम. हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए रिक्वायर्ड है हमें, तो उसके लिए भी काम कर सकते हैं अलाइंग एलिमेंट के साथ. ओके, उसकी मशीनेबिलिटी को बेटर कर सकते हैं. मशीनेबिलिटी कैन बी आल्सो इंक्रीज. ओके,
डक्टिलिटी भी हम उसकी बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें. So there are lot of things are there that we can alter with the help of these alloying elements. So कैसे कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ द अलाइंग एलिमेंट्स. व्हाट आर द पर्पस ऑफ अलाइंग? अभी हम यही एडवांटेज डिसएडवांटेज में हमने अभी डिस्कस किया, तो इसके रिलेटेड थोड़ी सी और बात करेंगे. दैट इज द पर्पस ऑफ अलाइंग. व्हाट इज द पर्पस? व्हाई वी डू द अलाइंग? अलाइंग मीन, और हम वो कंटेंट उसके अंदर क्यों ऐड कर रहे हैं? तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेराइट. फॉर स्ट्रेंथनिंग फेराइट को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम उसके अंदर ऐड करते हैं. फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेराइट, राइट. सो इम्प्रूव द corrosion रेजिस्टेंस. अगर हम उस मटेरियल की corrosion रेजिस्टेंस को हमने इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव द corrosion रेजिस्टेंस. यही हमारे पर्पज हो सकते हैं. व्हाई वी डू दैट अलाइंग एलिमेंट? हम वैसे तो करेंगे नहीं. अगर हम उसकी वही बेटर हार्डनेबिलिटी, उसकी हार्डनेबिलिटी को हमने चेंज करना है, तब वी विल डू द अलाइंग. फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को उसकी हमने इम्प्रूव करना है, ग्रेटर स्ट्रेंथ. फॉर दैट वी विल डू द अलाइंग. Okay, improve the machinability, to improve the higher or low temperature stability, to improve the ductility, to improve the toughness को improve करने के लिए. Okay, to for better wear resistance, जल्दी wear ना हो उसका. For better wear resistance we will do the alloying, or we add the alloying elements. To improve the cutting ability, to improve the case hardening properties. Okay, so lot of things are there that for the purpose we do the alloying. We add the alloying elements. So now which alloying element, like we are written here, so which carbon, for example we have a carbon. Okay, so with adding the carbon content, additional carbon content in this typical alloy steel, so what will be the effect of that on that properties of that steel? Okay, so now we will discuss about these materials, so how they will affect. Okay, so क्या हो सकता है स्टील और कार्बन का इफेक्ट ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पता होगा भी कौन सा अलाइंग एलिमेंट ऐड करने से उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, सो तभी आप उसको अलाइ कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन हम बात करेंगे कार्बन के बारे में. एनी आइडिया क्या हो सकता है? बट विल अफेक्ट ऑफ स्टील by adding carbon content, it will increase the hardness. अगर आपको हार्डनेस इंक्रीज करनी है, you will add more carbon content. अगर आपको उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, then we will do that also with the help of carbon percentage. Machinability might be also better in this case. Melting point, हम उसको भी वेरी कर सकते हैं, इसके melting point को with the help of a carbon content, right? So now second one is the nickel. Any guess about the nickel? nickel से क्या हो सकता है? Any guess? सोहन? Yes, sir. क्या इफेक्ट हो सकता है निकल के ऐड करने से? सर मालूम नहीं सर. ओके, एनीवन? अर्शदीप? नहीं पता नहीं सर. Okay, so if we add additional alloying element as a nickel, it will increase toughness. इससे हमारी toughness increase होगी and resistance to impact, उसकी toughness increase होगी, उसकी impact strength increase होगी. Okay, lesser distortion and quenching. जब हम quenching करेंगे, हम quenching करते हैं ना, quenching कब करते हैं? कब करते हैं quenching? In case of we have to make a more harder material, तो quenching करते हैं. In that case, if you add more nickel, तो जो distortion है हमारे material की, that will be lesser. Okay, lower the critical temperature of steel and widen the range of successful heat treatment. इससे क्या है, निकल के ऐड करने से जो उसका critical temperature है
उसको हम लो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वाइड रेंज के अंदर हम उसका सक्सेसफुली हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथन द स्टील, इट विल आल्सो स्ट्रेंथन द स्टील, स्टील की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम इसके अंदर स्ट्रेंथन स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम निकल ऐड करेंगे। दैट रेंडर्स हाई क्रोमियम आयरन अलॉय ऑस्टेनाइट डज नॉट यूनाइट विद कार्बन, हम इसको कार्बन के साथ यूनाइट नहीं कर सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता कार्बन और निकल का। डज नॉट यूनाइट विद कार्बन। Okay, so the third one we will talk about the chromium. इंपॉर्टेंट है ना पढ़ना, ये जरूरी है आपके लिए, कौन सा एलिमेंट ऐड करने से क्या होगा। सर निकेल में स्ट्रेंथ भी, वो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ना। यस, आई हैव रिटन हियर रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट, टफनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट बढ़ेगी उसकी। ओके सर, डक्टिलिटी भी बढ़ेगा ना। Yes, lot of I am writing some major property that will be altered. Okay, ऐसी नहीं है सिर्फ यही अल्टर होंगी, और भी इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो कुछ हमारी इंक्रीज होंगी, कुछ कंप्रोमाइज होंगी। ओके सर। तो विद क्रोमियम but will do chromium. So with the help of chromium when we join with the carbon it will form chromium carbide. जब हम इसको ज्वाइन करते हैं that is joined with carbon, तो क्या बनाते हैं जी, क्रोमियम कार्बाइड। सो क्रोमियम कार्बाइड क्या करता है, दैट विल ऐड डेप्थ हार्डनेबिलिटी विद इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू अब्रेशन एंड वियर। ठीक है, इससे क्या होता है, इट इंप्रूव द resistance to abrasion and wear. Okay, so this property is majorly affected by the addition of chromium. Then we have a silicon, right? So what is the effect of silicon? It improves the oxidation resistance. Oxidation resistance है वो हम इससे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। स्ट्रेंथन्स लो अलॉय स्टील्स, अगर लो अलॉय स्टील है हमारे पास, ठीक है, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। And acts as a deoxidizer. It is also acts as a deoxidizer. These are the effects of the silicon. Then we have a titanium. What is the effect of titanium? It provides localized depletion of chromium in stainless steels during long heating. क्या करता है, it prevents, ये रोकता है, it prevents localization, जब हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हैं वहां पे उसके अंदर आता है localized depletion of chromium in stainless steel ड्यूरिंग लॉन्ग हीटिंग, जब हम लॉन्ग टाइम तक हीट करते हैं उसको, उस टाइम पे उसकी जो डिप्लीशन है उसको ये रोकता है। prevents formation of austenite in high chromium steels. It also prevents the formation of high chromium steels. So formation of austenite in high chromium steels. It reduces martensite hardness
एंड हार्डनेबिलिटी इन मीडियम क्रोमियम स्टील। जो जब हम एकदम कॉन्चिंग करते हैं उस टाइम पे हमारे पास क्या मार्टनसाइट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, जिससे मटेरियल हमारा बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज को रोकता है, इट रिड्यूस द मार्टनसाइट हार्डनेस। हीट ट्रीटमेंट के अंदर उस टाइम पे जे उस चीज को कम करता है, उसको रोकता है। एंड हार्डनेबिलिटी इन मीडियम क्रोमियम स्टील्स की, अगर मीडियम क्रोमियम स्टील्स है, अगर हमने क्रोमियम ज्यादा नहीं इसमें ऐड किया हो, उस केस के अंदर हम में हेल्प करता है, राइट। देन मोलिब्डेनम की बात करें, so with the help of this molybdenum it promotes the hardenability of steel। अगर हमें हार्डनेबिलिटी बढ़ानी है उसकी तो we will add the molybdenum, promote the hardenability of steel, make steel fine grained। ठीक है, जो ग्रेन साइज है उसको ये ग्रेन साइज को फाइन करने में हेल्प करता है। दो तरह के ग्रेन साइज होते हैं हमारे, फाइन एंड कोर्स। देखिए किसमें हेल्प करता है हमें उसको फाइन करने में, राइट। मेक स्टील अनयूजुअली टफ एट वेरियस हार्डनेस लेवल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडेंसी टुवर्ड्स टेम्पर ब्रिटलनेस को कम करने में हेल्प करता है हमारी ये, ओके। एंड आल्सो इट राइज द टेंसाइल एंड क्रीप स्ट्रेंथ। इससे क्या राइज करता है हमारा टेंसाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मोलिब्डेनम, टेंसाइल एंड क्रीप स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर्स। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है हमारे पास, उस टाइम पे ये उसकी हाइट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और क्रीप स्ट्रेंथ है उसको राइज करता है, ठीक है। इनहांस द कोरोजन रेजिस्टेंस, ये हमारी कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है इन स्टेनलेस स्टील्स, ओके। देन वी हैव अ वैनेडियम, जो भी हमने वहां पे लिखे थे सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट आल्सो प्रमोट्स द फाइन ग्रेन साइज, इंक्रीज हार्डनेबिलिटी, कब जब वो डिजोल्व होता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड टफनेस टू हीट ट्रीटेड स्टील्स। जो हीट ट्रीटेड स्टील्स होती है हमारे पास, जिनका हमने हीट ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर रखा है, उनकी जो स्ट्रेंथ है और उनकी जो हार्डनेस है उसको बढ़ाने में हमें हेल्प करता है, हार्डनेस एंड टफनेस। इस केस में जब हमारे पास हीट ट्रीटेड स्टील्स है हमारे पास, ओके। देन इंपॉर्टेंट पार्ट टंगस्टन। What is the work of tungsten value add? It again increase the hardness, यस सर, हार्डनेबिलिटी इसका इंक्रीज होगा सर। it increases the hardness, promotes the grain size, जो ग्रेन साइज है उनको प्रमोट करेगा, रेजिस्ट हीट रेजिस्टेंस बढ़ाएगा उसकी। टंगस्टन का जो टेम्परेचर है ज्यादा होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो उसकी जो हीट रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। इट आल्सो प्रमोट द स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उस टाइम पे भी जो स्ट्रेंथ है उसको ये रिटेन करने में हेल्प करेगा, प्रमोट्स स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ओके। मैग्नीज, आप सबको ये प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मटेरियल अगर आप कोई प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हो, अगर आपको बोला जाए कोरोजन रेजिस्टेंस हमें जो उसकी है इंक्रीज करनी है, तो विच टाइप ऑफ मटेरियल यू विल यूज, तो आपको एकदम दिमाग में आ जाए विच मटेरियल यू हैव टू यूज फॉर द कोरोजन रेजिस्टेंस, ओके। तो मैग्नीज इज आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। इससे हम स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीज करते हैं, बट इट एज कंपेयर टू द कार्बन से हम स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, बट इट इज लेसर देन द कार्बन परसेंटेज। अगर हम कार्बन को ऐड करते हैं तो वो ज्यादा करेगा, बट मैग्नीज उतनी कंटेंट डालने से कम करेगा हमारे पास, ओके।
और इससे क्या हमारी जो डक्टिलिटी है और बेल्डेबिलिटी है तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैग्नीज ज्यादा होगा इट लोअर्स द बोथ डक्टिलिटी एंड बेल्डेबिलिटी। इसकी ज्यादा मात्रा होने से हम उसको अच्छे से बेल्ड भी नहीं कर सकते और उसकी डक्टिलिटी भी कम हो जाएगी अगर ज्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ हाई कार्बन स्टील्स। देन कॉपर, कॉपर के बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में आई थिंक बता सकते हो आप। बट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर? सर इंक्रीज डक्टिलिटी सर। इंक्रीज डक्टिलिटी, ओके। कितने परसेंट में हम ऐड करते हैं, वी विल ऐड इट फ्रॉम 0.2 to 2.5%, ओके, इन केस ऑफ स्टील। डक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, इट आल्सो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन। जो एटमॉस्फेरिक कोरोजन है उसके लिए भी हेल्प करेगा हमें, ओके। एंड आल्सो स्ट्रेंथ एक्ट एज अ स्ट्रेंथनिंग acts as a strengthening agent. Aluminium, what is the function of aluminium? It is act as a deoxidizer. Okay, produce fine austenitic grain size. Okay, if present in the amount of 1%, अगर 1% से ज्यादा अमाउंट में जो वहां पे प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इट हेल्प्स प्रमोटिंग नाइट राइडिंग। अगर 1% से ज्यादा होगा जी, ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग नाइट राइडिंग, ओके। तो हमारे दो अभी लास्ट दो पेंडिंग है, दो लाइंग एलिमेंट्स जो हमने अभी इसमें डिस्कस करने हैं। वन इज द कोबाल्ट एंड अनदर वन इज द वेनेडियम, ओके। कोबाल्ट क्या करता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है हमें। जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फटीग, हार्डनेस, टेंसाइल, फटीग, हार्डनेस, okay. So it also improves the heat resistance, it also improves the heat resistance. In case of vanadium we add it from 0.15 to 0.5%, इस रेंज में इसको ऐड करते हैं। इट इज अ पावरफुल कार्बाइड फॉर्मर। ये क्या हमारे पास स्टेबलाइजर सीमेंटाइट एंड इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द चिल, ओके। तो साथ में सीमेंटाइट बड़े केस में भी हमें हेल्प करता है। जो हम आर्म कार्बन डायग्राम में देखते हैं इसको, इसका इफेक्ट स्टेबलाइज द सीमेंटाइट, उसमें देखा था ना आर्म कार्बन डायग्राम में सीमेंटाइट, ठीक है ना। स्टेबलाइज सीमेंटाइट इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव द स्ट्रक्चर, ओके। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड, हमने अब क्या डिस्कस किया है अब तक, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अलॉय स्टील्स। अलॉय स्टील्स मींस
when we exceed the range of any of the alloying element, तो उससे हमें जो डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं जो हमें काम के लिए चाहिए उसके लिए हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ओके, तो जो टिपिकल अलॉय स्टील है उसके अंदर ये कंपोजिशन हमारे पास होती है कार्बन, सिलिकॉन, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, मोलिब्डेनम। ओके, तो रोल क्या है अलॉइंग एलिमेंट्स का? टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। स्टील इज आल्सो अलॉय एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड आयरन। So what are the advantage and disadvantage we have discussed? Then what is the purpose? Why we do the alloying of steels? Why do we do add these alloying elements? To strengthen, to improve some properties, for a better hardenability, for greater strength, to improve the toughness, for better wear resistance, cutting abilities को improve करने के लिए, and so many factors are there for which we do the alloying of these alloying steels. So then, what is the effect of these alloying elements? We have discussed about each and every alloying element. So what are the effect of those alloying elements while we add it into the steel? Okay, we have discussed about carbon, nickel, chromium, silicon, titanium, molybdenum, vanadium, tungsten, manganese, copper, aluminium, cobalt, and vanadium. Okay, so till now आपको कोई चीज समझ ना आई हो, जो आपको कोई कंफ्यूजन हो? और शैल वी कंटिन्यू फर्दर? सर इसका नोट सेंड कर दीजिए ना सर। क्या करें? सर इसका नोट सेंड कर दीजिए ना, आपने बोला था कर दूंगा। क्या चीज? नोट सर। ओके ओके, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आई विल अपलोड इन द गूगल क्लासरूम। ओके ओके सर। तो ये तो हो गया जब हम इसको ऐड करते हैं। तो कुछ कमर्शियली हमें अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर अलॉय स्टील्स। तो सम ऑफ द पॉपुलर अलॉय स्टील्स जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको कैसे उनको नेम करते हैं। सो सम ऑफ द पॉपुलर अलॉय स्टील्स दैट आर अवेलेबल लाइक अ सिलिकॉन स्टील, okay, silicon manganese steel, nickel steel, chromium nickel steel, chromium vanadium steel, molybdenum steel, chromium molybdenum steel, chrome steel, manganese steel, tungsten steel, vanadium steel, cobalt steel. Okay, so while we talk about silicon steel, जब हम कहते हैं हमें सिलिकॉन स्टील चाहिए, what is meant for that? Silicon steel contains carbon percentage of 150, manganese in the case of 0.60%, and silicon in as a 1%. So what is the effect of silicon steel? Silicon imparts strength and fatigue resistance and improves the electrical property of the steel. With the help of this, we improve the electrical properties. Right? So like many bridges may have built of what is called silicon structural steel. So जो सिलिकॉन स्ट्रक्चर स्टील है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन स्टील ऑफ इक्वल डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सेम रहेगी। जो हमारे पास कार्बन स्टील है, सिंपल कार्बन स्टील है हमारे पास, एक हमारे पास सिलिकॉन स्टील है, राइट। तो लाइक आपने देखा होगा जो आपके ब्रिजेस होते हैं उसके अंदर किस टाइप यूज करते हैं? सिलिकॉन स्ट्रक्चरल स्टील। इसको क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन स्ट्रक्चरल स्टील। तो इसका इफेक्ट क्या है, इसका इससे चेंज क्या है इसके अंदर? दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द कार्बन स्टील विद इक्वल डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी क्या है कि दोनों में सेम रहेगी। स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, डक्टिलिटी विल बी द सेम, राइट। तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, ऐसे ही सबके बारे में बात करेंगे। लाइक निकल स्टील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निकल स्टील? जब हम निकल स्टील की बात करते हैं, इन दैट केस वी हैव अ कार्बन ऑफ 0.35% एंड निकल विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3.5%। तो इसके अंदर इतनी कंपोजिशन होगी। ओके, तो कहाँ पे यूज करते हैं इनको? लाइक इन केस ऑफ हैवी फॉर्जिंग, यहाँ पे हैवी फॉर्जिंग होती है वहां पे निकल स्टील को यूज किया जाता है।
Turbine blades are made with the help of these nickel steels. Okay, bolts and nuts. Okay, तो बोल्ट्स एंड नट में कौन सी होती है 40, कैसे लिखते हैं 40 निकल 3 स्टील, ये इसका ग्रेड होता है. We will also discuss about these grades, कैसे इनको ग्रेडिंग करते हैं इनकी. Okay, what is the meaning of this 40 nickel 3 steel, तो इन सब की बात करेंगे. Okay, so I will not go detail about each and every type of steel. So you follow any book and find out the different meanings of these type of nickel steel, silicon steel, manganese steel और what chromium nickel steel. Okay, इन chromium nickel में क्या होगा, निकल और क्रोमियम दोनों के एलिमेंट्स को हमने वेरी किया, राइट. अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत रहेगी, we will discuss later on, right? So in the upcoming lecture we will discuss about the Indian standard कोड. ठीक है, तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड कोड हैं उनके लिए के बारे में हम बात करेंगे. we will talk about IS 1762 to 1974. ओके, कोड्स हैं हमारे पास, तो उनको कोड्स दिए गए हैं दैट आर बेस्ड ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशंस. ओके, तो कैसे कोड दिए गए इनको, बेस्ड ऑन द मैकेनिकल एंड केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से कोड दिए गए हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक कोड बता देता हूँ जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कैसे है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ FEE 300P35, ये कोड है हमारे पास. तो अब इस कोड का मीनिंग क्या है, ये स्टील के साथ लिखा होता है, इससे हमें पता चलेगा वो किस तरह से उसको प्रोसेस किया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं. ओके, तो सिमिलरली वी विल हैव अ FE47W. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है, इसके अंदर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अगर इसको मैं डिस्कस करूं, इसका मीनिंग है जो इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट विल बी 470 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और किस क्वालिटी की है, दैट इज फॉर फ्यूजन वेल्डिंग क्वालिटी. फ्यूजन वेल्डिंग क्वालिटी वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट. तो जैसे हमारे पास 25C5P0, इसका क्या मीनिंग है, so we will discuss this all in the next lecture.